Okay. So now the topic we have is okay. So topic we have is anyone can be a trader. So who can be a trader or who cannot be a trader? I will explain you in this in a very easy or a simple way. Okay. So uh, like let's suppose if you can buy a course, okay, then you will become a trader. First thing, just simply buy a course. Got it? So first thing is that this is the thing which the most of the people do in your initial days. Even I am one of them. एक कोर्स खरीदो और सिंपली से एक ट्रेडर बन जाओ, ठीक है? सो ये लाइफ में कभी भी नहीं होगा. सो दिस इज द रॉन्ग वे टू बिकम अ ट्रेडर. ये कभी भी होगा नहीं, ठीक है? बिकॉज इफ दिस इज सो मच इजी, देन let's say if in my batch in near to 300 peoples are there, so I don't think so all 300 are become a trader right now. Even you can check in your nearby people who doing the trading from so long, you can check that how many sustain the trading journey for long. ठीक है? अगर आप देखो मेरे बैच में भी 300 लोग थे, मतलब यहाँ पे जो जो डिस्कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, इवन ऑल द पीपल हैविंग अ 300 पीपल ऑफ ग्रुप, तो वो सारे के सारे तो नई ट्रेडिंग करते होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इफ यू सी द स्क्रीनशॉट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो देर आर फ्यू हु आर डूइंग द ट्रेडिंग ऑन द डेली बेसिस बाय दे अपडेटिंग द थिंग्स. ठीक है? तो वो अपलोड कर रहे हैं, वहीं से पता चल जाता है कि कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं. गॉट इट? सो अगर आप अपने नियर बाय भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने कोर्स भी किया होगा, तो इवन दे आर नॉट सस्टेनिंग द देयर ट्रेडिंग जर्नी राइट नाउ, तो वो नहीं कर रहे होंगे. पहला थिंग तो ये है कि people, it's not a this is a wrong way, that this is a wrong concept that you can buy a course and you can become a trader. ठीक है? तो खरीदने से तो ट्रेडिंग नहीं बनेगी. नाउ सेकंड थिंग, अब नाउ विल अंडरस्टैंड दिस इन अ लॉजिकल वे. ठीक है? अब लॉजिकल वे क्या है? लॉजिकल है कि who can be and who can't be. कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है. Got it? So okay. So now who can be and who can't be. तो कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है. Let's discuss about this thing. और what I can say, who can be and who cannot be. तो जो यहाँ पे कैटेगरी में है, that is fine, and the person who is in this category, then the thing is that what they have to do to become a trader. उनको क्या ऐसा करना है कि उनको ट्रेडर बनने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा. ये तो चलो ठीक है, it's if you are under this and then it's fine, and if you under this, then what you have to do to become a trader. Now सबसे पहले you have to make some rules for the trading. कुछ ना rules बनाने पड़ेंगे हमको. First rule will be without logic no trade. ठीक है? जब तक आपके पास किसी चीज को बाय करने का या सेल करने का लॉजिक नहीं है, सो आप उस ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते. इट मींस if you don't have the reason behind any trade, so you can't, then there is no trade for you, then you don't have to do the trade. Okay? So if you can see, most of the times if somebody asks me for any stocks कि let's check this stock, some buying is there, so मैं उनसे हमेशा ना just proactively ask for the chart first. Send me the chart, then ask me any questions. So without sending a chart, don't ask me any questions. So this is the thing which I usually do. जब भी आप मुझसे किसी स्टॉक्स का पूछोगे ना, मैं हमेशा आपसे चार्ट के बारे में बात करता हूँ कि आप मुझे उसका चार्ट भेज दो, तो मैं आपको बताता हूँ कि उस पर लेवल है कि नहीं है. अगर आपने लेवल बनाया होगा, if there is logic behind that trade, then I will cross check with the levels, that is completely fine.
And if your chart is full of indicators and you just buying randomly, so it means that it's not a part of the trading. So first rule है, you should have the logic behind every trade. If you don't have the logic, then there is no need to do the trading. Got it? Second thing क्या है? Second thing, what is the second thing? Don't go for tips. ठीक है, टिप्स के लिए नहीं जाना है. व्हाट इज टिप्स? अब टिप्स क्या होता है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री थिंग्स गोइंग ऑन इन द मार्केट. ठीक है, जिसमें हमारे सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं टेलीग्राम चैनल्स. Got it? So what is tips? Tips क्या होता है ना, tips क्या होता है ना, in previously if you see the Harshad Mehta scam 1992, so tips previously the people at the time most of the trader use the tips. Tips is kind of an inside trading. It means they are getting some inside news of any of the company, what is going on, that what is the financial condition of that company, the salary process is going smooth over there, or is there any strike going on there, or there is an increment going on in the salary of the employee. So by this they analyzes that the hype in the price of the stocks, or may the stock will fall. ठीक है, तो टिप्स क्या होता है, लाइक हर्षद मेहता अगर किसी ने देखा है तो उसमें बताया गया है टिप्स का मतलब क्या होता है ना, जैसे वो इनसाइड ट्रेडिंग करते थे, किसी भी कंपनी में जाके वो पता करते थे कि बैलेंस शीट कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है इस कंपनी का, जो एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक पे हैं या उनकी सैलरी में क्या हाइप हो रहा है, तो उससे वो अंदाजा लगाते थे कि मार्केट में उनका जो शेयर है वो अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, या उनकी पॉलिसीज कैसी हैं, तो वो इनसाइड न्यूज निकालते थे, उसको बोला जाता था टिप्स. बट इन नाउ डेज tips like is this, if you can see most of the telegram youtube channels you can go through, so usually most of the youtube channel having a free telegram group. Okay, so if I'm not wrong, so out of 95% of the telegram group giving you the free trades. Okay, and they are selling their courses over there, and the free trades they are giving without graph. So without graph, what does it mean? It comes to our rule number first, without logic no trade. Got it? So अगर कोई टेलीग्राम फ्री ग्रुप आपको कॉल्स दे रहा है विदाउट एनी ग्राफ के, तो वो ट्रेड आपसे की करवाई जा रही है बिना किसी लॉजिक के. तो जो अगर आप, पहला रूल हमारा ये है कि बिना किसी लॉजिक के ट्रेड बंद करना ही नहीं है. तो अगर आप रूल से चलोगे तो लॉस भी नहीं होगा, और यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी टू बिकम अ ट्रेडर. ठीक है, तो आप इस जर्नी की तरफ कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, सो this is the thing. Now the thing is that, like the money we have, it's all is our hard earning money. Okay, so it's not possible to believe on others. तो क्योंकि ऐसा होता है ना, if you will, like in reality, like in reality, even we not able to trust anyone easily, but don't know why in the market any random telegram group will affect on our trading journey. ठीक है, रियल लाइफ में क्या होता है ना, हम कोई किसी इंसान से मिलेंगे ना, तो हम लोग उस पर भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, बट जहाँ पे हमको पैसा लगाना है तो हम लोग को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी कोई रैंडम टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं. तो ऐसा है नहीं रियल लाइफ में, बट जब बात आती है ट्रेड की, तो बिकॉज पीपल वांट सम शॉर्टकट्स टू अचीव समथिंग. ठीक है, तो शॉर्टकट्स के लिए कि डोंट नीड टू स्पेंड सो मेनी टाइम्स. Even my lots of clients told me that instead of learning, you take our money, kind of account handling, because you already spent 1 year, so we don't have a time to spend 1 year in the stock market, so better to do you to trade on our money. So it's kind of the thing that we are giving our car to drive someone else. तो अगर हम अपनी गाड़ी किसी और को देंगे तो ऑब्वियसली वो अपने रूल से चलाएगा, तो वो ब्रेक लगाएगा नहीं लगाएगा कोई गारंटी नहीं है, तो देयर आर more chances for the accident.
एक्सीडेंट के पूरे पूरे चांसेस हैं, बिकॉज अगर वहां पे एक्सीडेंट होता है तो लॉस ऑफ माइन नॉट इज, तो वहां पे लॉस किसका होगा? मेरा ही लॉस होगा। अगर मेरी गाड़ी किसी कोई और चला के एक्सीडेंट लेगा, सॉरी बोल के वापस कर देगा, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। गॉट इट? सो होगा क्या, इफ यू फॉलो एनी रैंडम ट्रेड टेलीग्राम चैनल और अकाउंट हैंडलिंग, सो वो क्या करेगा, दे विल चार्ज 40% ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम आउट ऑफ 100। ठीक है, 40% तो प्रॉफिट भी ले जाएगा, लॉस में से वो कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है, तो आपको लॉस देके किस दिन मार्केट से गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज तुक्का मारना है ना। ठीक है, तो तुक्के मारने के लिए तो प्रोबेबिलिटी तो 50-50 भी होती है। इफ यू कैन नो द गैम्बलिंग, सट्टा खेलते हैं तो वहां पे भी 50-60 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, या तो आप जीतोगे या तो हारोगे, या 60-40 की। तो अगर आप जीतोगे तो उसमें से आपको वहां पे शेयर पे करना है। इफ यू विल विन देन यू हैव टू पे समथिंग टू सम अदर गाय बिकॉज ऑफ दिस अकाउंट हैंडलिंग प्रोसेस। इफ यू लूज देन इट्स टोटली योर्स, लॉस आपका पूरा है। तो किसी दिन वो आपका अकाउंट वाइड अप, देखो अभी मैंने आई ऑलरेडी शेयर्ड यू सो मेनी screenshots of 10 lakh rupees, 50 lakh rupees of losses in the process of account handling. Even I received today some people's screenshot of 5 lakh rupees of loss in account holding again. So this is the kind of thing that can be happen in only in within a month. एक एक महीने में ही 50-50 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए जीरो करके अकाउंट हैंडलिंग वाला दे देता है, बिकॉज वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अभी क्या है ना, रिसेंटली अ केस ऑल्सो फाइल फ्रॉम समवेयर in Ghaziabad area in Vaishali. Okay, there is a guy who doing account handling in the trading, and the guy who is in the police, he gave some money to that person for the account handling. तो उन्होंने वो पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया और उसको लेके जीरो करके वो वापस कर दिया। तो उस पे 420 का केस फाइल हुआ है। बट हुआ क्या है कि बिकॉज यू आर गिविंग द मनी बाय योर विल, ठीक है, अपनी अपनी इच्छा से दिया जाता है वो पैसा, कोई जोर जबरदस्ती तो की नहीं होगी। बट लेट्स सी, अगर दिया भी है तो गलत दिया है, देना नहीं चाहिए था। ठीक है, सो कांट ट्रस्ट एनीवन instead of in case of money, you can't give the money to anyone blindly. Got it? So the thing is that before investment, or you can say before trade, use your mind. ठीक है, ऑल आर एजुकेटेड। सो कभी भी कोई ट्रेड करना है या कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज योर माइंड फर्स्ट। It doesn't mean that I'm saying that you have to buy above that level. It doesn't mean that you have to buy. You have to make your level. If the buying is also there as per your level, then you can go for the trade. It means your analysis is match with my analysis. That's its confirmation. Or if I'm saying it's a buying and there is a conflict between you and my level, that you think that it's a selling level, so better to avoid that trade. तो ये भी आप कर सकते हो. I'm not saying that you have to follow me blindly. ठीक है, तो मैं अपने लिए भी नहीं बोलता हूँ ये चीजें। So that thing you can do. Okay, so chalo, let's move to the second topic. Let's say if somebody wants to do account holding, so account holding है ना, there is a certification. One certification is also there from the RBI, Reserve Bank of India से एक certifications होता है, RBI से एक सर्टिफिकेशन मिलता है, द पर्सन हु कैन डू अकाउंट होल्डिंग। अकाउंट होल्डिंग के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, दैट पर्सन ओनली कैन डू द अकाउंट होल्डिंग। तो या तो आइदर दैट पर्सन हैविंग द सर्टिफिकेट, तो वो कोई शो करेगा नहीं आपको, नोबडी विल शो दैट थिंग बिकॉज वो होता नहीं है किसी के पास भी। गॉट इट? ओके, सो नाउ one thing more, that see, if a person is doing account holding, so then why he is interested in your money? If he is much capable of doing much profit, then why he is interested in your money? तो अगर कोई पर्सन है वो अकाउंट होल्डिंग करने के लिए आपको बोल रहा है, तो अगर उसका देखो अकाउंट होल्डिंग के लिए ना, अगर आप 5 लाख का कैपिटल होता है इंडिविजुअल के लिए, और अगर कोई फर्म है तो दैट विल बी कैपिटल नियर टू 45 to 50 lakhs capital required होती है minimum for the account holding. So if the person having that much of net worth, then why he is interested in your 1k or
5K, तो उसके उसको आपके 1000 और 5000 में क्या इंटरेस्ट है? ये तो लॉजिकल सी बात है। ओके, इफ दे हैव द एक्सपीरियंस देन दे कैन अर्न इजीली। तो अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो इतना तो वो इजीली कमा सकते हैं ना, तो फिर वो आपको फिर वो किसी और को क्यों अप्रोच करते हैं उसी के लिए, मतलब। तो अब नाउ the thing is that suppose you also know that how many uh, few time is required to place a order, ठीक है? within a few second we have to place the order, right? if you in the options, तो आपको पता है कि कुछ सेकंड ही लगते हैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, ठीक है? उतनी देर में ही मूवमेंट चला जाता है। सो if it required a few seconds to place a order, then how is it possible to place order in someone's other's account? सेम ऑर्डर मैं दूसरे अकाउंट में कैसे प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे फ्यू सेकंड लगेगा। जितनी देर में मैं सपोज करो if I bought a 5 3 if I bought any option at 300 rupees, so if I place the order somewhere around here, so may in the second account it reflect near to 350 at that point. So is it possible to buy the same thing at the lots of accounts at the same time? तो ये पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है? तो एक चीज तो ये है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है? सो नाउ अब नाउ व्हाट कैन डू, अब हमने क्या किया, वी मेक सम रूल्स, we know we are not following any tips, we are not following any telegram, random telegram who are sharing the trades, not sharing the chart. Okay, if they're sharing the chart, it means it's a process of learning. They want you to know that how the trade will work and this is the logic behind any trade. Okay, तो जो भी आपको कोई ट्रेड दे रहा है, अगर वहां पे टेलीग्राम में चार्ट शेयर हो रहे हैं, then it will work for you, because at least you can do the analysis. ट्रेड करना या ना करना जरूरी नहीं है, it's not mandatory to do the trade daily, but at least you should know the level. जहाँ पे अगर आपको levels भी आ जाएंगे तो that is more enough for your learning, ठीक है? So that level you can match with your level. So now you can see that how much accuracy you have in your level. So कहाँ पे काम करना है तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। Got it? So now uh, yes, now like for the now what happened, like for the trading we have, देखो ट्रेडिंग के लिए ना दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, वी हैव टू ऑप्शंस फॉर द ट्रेडिंग। ओके, फर्स्ट इज आइदर वी कैन ट्रेड ऑन द फ्यूचर्स, जहाँ पे वी रिक्वायर्ड फ्यूचर्स के लिए क्या होता है ना, वी रिक्वायर्ड मोर कैपिटल। गॉट इट? सो फ्यूचर के लिए मोर कैपिटल लगता है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं सीईपी में। नेक्स्ट वी ट्रेड इन द सीईपी। ओके, सो दैट रिक्वायर्ड इफ यू ट्रेड इन निफ्टी दैट रिक्वायर्ड 8000 to 10000 ओनली इन निफ्टी 50। इसमें एक लॉट आपको मिल जाएगा निफ्टी 50 में। नाउ the thing, the reason to telling all this thing is you have to trade only with one setup if you are a beginner. So आपको ना एक ही सेटअप पे ट्रेड करना है। इफ यू फाइंड दैट सेटअप देन यू हैव टू ट्रेड, इफ यू नॉट फाइंड एनी सेटअप देन यू डोंट नीड टू ट्रेड, ठीक है? जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताए थे। ठीक है, इनमें से कोई भी एक सेटअप मिलता है देन यू कैन ट्रेड। अगर इनमें से कोई सेटअप नहीं मिलता है तो देन बेटर टू अवॉइड दैट डे, ठीक है? तो ये एक पार्ट है जो आपका हेल्प करेगा टू हु विल बिकम अ ट्रेडर, हु विल नॉट बिकम अ ट्रेडर, ठीक है? तो अगर इफ व्हाटएवर द सेटअप यू लाइक्स, जरूरी नहीं है कि सेटअप द गिवन बाय मी you have to trade on that. It means that setup you like the most, जिसमें you will feel the comfortable zone, or you can feel that the risk reward ratio is good in that trade or in that setup, you can trade on that setup, ठीक है? उस setup में आप trade कर सकते हो। give me a second, guys.
खाना लिया था एक बार, खाना। Okay, so now let's say, suppose setup, on the setup which you want to trade only after the back testing, ठीक है। आफ्टर द बैक टेस्टिंग, जो मैं हमेशा आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ, इफ द विनिंग रेशियो ऑफ दैट बैक टेस्टिंग is 60 to 70%, then only trade on the setup, else no, ठीक है। अगर उस सेटअप का 60 to 70% का रेशियो बन रहा है बैक टेस्टिंग करके, बैक टेस्टिंग का क्या बताया था मैंने, 3 months प्रीवियस, 3 months इन करंट मार्केट, तो 6 month की प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए होगी, विदाउट इसके कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक अ शॉर्टकट, देन होगा क्या, मैं बताता हूँ। समटाइम वी make 50k to 80k, and then we make 80k to 0, and then adding more capital, ये सच्चाई है, दिस इज द फैक्ट ऑफ शेयर मार्केट। 50,000 का शेयर बनाते हैं, 80,000 को जीरो करते हैं, फिर जीरो करके फिर से कैपिटल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है सच, इफ यू वांट टू मेक अ शॉर्टकट, so this will happen. If it will not happen yet, then it will happen in some days, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ है किसी के साथ तो ये होगा 100%, ये तो फैक्ट है, ठीक है। अब नाउ व्हाट इफ यू आर इन द सेम जोन, अगर व्हाट क्या, अगर जो लोग इसमें वो क्या करेंगे, उनको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप द ट्रेडिंग, सबसे पहले ना उनको स्टॉप करना है, इससे ट्रेडिंग को बंद करना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस अगेन, और आपको प्रोसेस वो स्टार्ट करना होगा, कौन सा वाला, सेटअप वाला। सेटअप इट मींस एनी सेटअप आप पकड़ो, कोई भी सेटअप आप पकड़ो, आइदर डबल टॉप, आइदर डबल बॉटम, आइदर बॉक्स पैटर्न, आइदर हेड एंड शोल्डर, आइदर कप एंड हैंडल, कोई सा भी सेटअप पकड़ो, 6 मंथ का बैक, 3 months प्लस 3 months का टेस्ट करो उस पे। इफ यू फाइंड अ विनिंग रेशियो ऑफ 60 to 70%, देन यू कैन स्टार्ट द जर्नी आफ्टर 6 months। बिफोर 6 month से पहले देयर इज नो लॉजिक टू स्टार्ट अर्लियर, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ थिंग कि भाई होता है ना कि आपने देखा होगा रोडीज का ऑडिशन होता है, तो बोलते हैं भाई तू ही बनेगा रोडी, तू ही बनेगा रोडी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तू ही बनेगा रोडी किसी ने बोला नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अगर नहीं हो पा रही है, तो जैसे कहते हैं ना कि ऑल थिंग्स आर नॉट फॉर एवरीवन, ऑल वर्क इज नॉट फॉर एवरीवन, तो अगर कोई फर्नीचर बनाता है, कोई कारपेंटर है, तो फिर फर्नीचर वही बनाएगा। मेरे को अगर फर्नीचर बनाना नहीं आता तो मैं ट्राई भी करूंगा तो बना तो लूंगा, पर उतना बेटर नहीं बना पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, कुछ दिन में क्विट कर दूंगा। तो बेटर है जिसका काम जो है वो वही करने दो, because we are trading here with the real money, so instead of giving that money to the market, better to work on that, ठीक है। मार्केट को पैसा देने से बेटर है कि आप उस पर काम कर लो, so that will help you out, ठीक है। now the question is, who can be a trader? The answer is, trading is for everyone, ठीक है। ट्रेडिंग सभी लोगों के लिए है। अब ट्रेडिंग सब लोगों के लिए क्या है कि क्या होता है ना, some are fast learner and some are slow, ठीक है। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग स्लो देर में सीखते हैं, बट सीखते सब लोग हैं, कब, जब उनका वे ऑफ लर्निंग इज करेक्ट, ठीक है। अब सपोज करो मुझे मैथ्स की तैयारी करनी है और मैं इंग्लिश की बुक लेके बैठा हूँ, तो वो क्लियर नहीं होगा एग्जाम। स्टडी तो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, बट क्यों, क्योंकि सिलेबस ये वाला है नहीं, तो इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट मैथ में चलता नहीं है, तो यहाँ पे लॉजिक नहीं बनेगा। अब आप बोलोगे मैं मैथ का बुक एग्जाम में इंग्लिश पढ़ के आया हूँ, मैंने पढ़ा तो था, तो मार्क्स तो मिलने चाहिए, तो मार्क्स मिले नहीं। मैथ्स के पढ़ने के लिए आपको मैथ्स की ही बुक पढ़नी पड़ेगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल that yes, everyone can be a trader, but the thing is that uh, you should know that in which category you are and what are your in which zone you are lacking, just make, you have to work on that thing। अब now, अब होता क्या है कि मतलब क्या होता है ना कि
we are like a kind of a trader, but may the way of doing a thing will be different. ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन. अब पर्सन टू पर्सन क्या होता है, कुछ लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं कुछ लोग. द पर्सन सम पीपल आर डूइंग अ स्विंग ट्रेड, इट मींस सम पर्सन हु आर गुड इन स्विंग ट्रेड. स्विंग ट्रेड का मतलब क्या होता है, वो आज खरीदते हैं, उसको कैरी करके ले जाते हैं 4 to 5 डेज के लिए, और वो 4 to 5 डेज के लिए सेल के बाद उसमें सेल आउट करते हैं. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज वेरी लेस रिस्की. यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम होता है स्विंग ट्रेड में. ठीक है, सेकेंड वन इज ऑप्शंस, जो हम लोग करते हैं, द थिंग विच वी आर डूइंग, दिस इज रिस्की. ये रिस्की प्रोसेस है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट आता है. थर्ड तरह के कौन से ट्रेडर होते हैं, द पर्सन हु डूइंग अ स्कैल्पिंग. स्कैल्पिंग वाले जो होते हैं, दे आर मोर रिस्की बिकॉज दे आर यूजिंग ओनली 20 to 10 सेकेंड ऑफ टाइम फ्रेम. तो जो इतने छोटे से टाइम फ्रेम को यूज करके ट्रेड करता है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की होगा, बिकॉज यू कैन सी इन द मार्केट एक बड़ी कैंडल, बिकॉज एक बड़ी कैंडल बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है. कई बार 1 मिनट की कैंडल 100 पॉइंट्स की भी आती है मार्केट में. सो दैट कैन बी हैपन इन द मार्केट. सो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, दैट विल इंक्रीज योर रिस्क बिकॉज यू हैव अ लेस टाइम टू मेक योर डिसीजन. 20 सेकंड में डिसीजन बनाना बहुत रिस्की वाला काम होता है. ठीक है, तो स्कैल्पिंग वाला सबसे डेंजरस होता है बिकॉज इन स्कैल्पर पीपल दे आर यूजिंग द ट्रेड विद लाइक मोर नंबर ऑफ लॉट्स, और यू कैन से मोर नंबर ऑफ क्वांटिटी. तो जो स्कैल्पर होते हैं वो मोस्टली ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, तो दैट्स रीजन दे इंक्रीजिंग देयर रिस्क आल्सो. एंड नाउ द फोर्थ वन में कौन आते हैं, जो इन फोर्थ वन द पीपल हु आर कमिंग हु आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये भी एक टाइप का ट्रेडर है जो इन्वेस्टमेंट करता है. ये है वेरी 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 लेस रिस्की, सॉरी वेरी 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 लेस रिस्की. ये सबसे कम रिस्की है इन्वेस्टमेंट वाला. गॉट इट. तो ये भी एक तरीका है. सो यू कैन स्टार्ट बाय द एनालिसिस ऑफ योर ग्राफ एंड यू कैन स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट आल्सो ऑन दैट बिहाफ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको चांसेस मिल जाएंगे. यू कैन इजीली आउट फ्रॉम दैट ट्रेड. अगर आप होल्ड करके ले जाओगे 1 महीने, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन, तो आप इजीली वहां से एग्जिट कर सकते हो बिकॉज वहां पे मूवमेंट इज वेरी स्लो. गॉट इट. तो अब देखो होता क्या है ना, तो कुछ पीपल आर मेड टू कैप्चर 100 पॉइंट्स. गॉट इट, जैसे हम लोग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सम पीपल आर मेड टू कैप्चर 30 पॉइंट्स, देन दे स्टार्ट ट्रेलिंग देयर एसएल. ठीक है, ये भी हम लोग कई बार करते हैं. वी डिड दिस आल्सो सो मेनी टाइम्स. नाउ थर्ड टाइप के पर्सन कौन से होते हैं, हु कैन बुक ओनली, हु कैन एबल टू बुक ओनली 30 पॉइंट्स. तो 30 पॉइंट्स ही वो बुक करते हैं. एंड सम पीपल कैन ओनली बुक 20 पॉइंट्स एज पर देयर पेशेंस. ठीक है, तो जिनका जितना पेशेंस लेवल है, दे विल वर्क एज पर देयर पेशेंस लेवल. तो वो इस तरह से वो काम करते हैं. ठीक है, देखो ऐसा होता है ना, सबके ऑल पीपल हैविंग अ डिफरेंट माइंडसेट. सो काइंड ऑफ दिस यू कैन सी, इफ यू कैन आस्क मी. सो मेरा क्या है कि ना, इफ द मार्केट विल गो अप, सो सपोज if I am making a trade, so the person who like with me from so long, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, उनको पता होगा that from first day I am saying that suppose if I am making a trade somewhere around here and this is my target and this is my stop loss. ठीक है, so I am kind of a trader who believe in either stop loss, either target. After that, if this hit, then close your day. If it is hit, then close your day. If the market will go going far away, that that thing is not my point. Okay, I'm just concerned about only 100 points from the market. So point मुझे मिले, मेरी trading close. अगर हाँ, if I'll plan above than that, then I can do after doing a trailing kind of thing. ठीक है, ट्रेलिंग करके मैं जा सकता हूँ, but
100 पॉइंट्स मेरा हो गया, तो वहां पर दैट्स इट फॉर मी। ठीक है, बाद में क्या हुआ क्या नहीं होगा, आई एम नॉट प्लानिंग फॉर दैट, आई एम जस्ट प्लानिंग फॉर द वन थिंग, आइदर स्टॉप लॉस, आइदर हिट, आइदर टारगेट, एंड देन आई हैव टू क्लोज द डे। ओके, so the answer of this question is yes, everyone can be a trader, but what we have to do, we have to change the method which we following previously। जो लोग पहले कोई method follow करके आ रहे हैं and the winning ratio of that method is not good, so it is it means this is not possible that you can be a successful trader after, by following the same method again and again। तो ये मेथड से नहीं बनेगा, बिकॉज इससे बनना होता तब तक बन चुके होते। तो यू हैव टू चेंज द मेथड। एंड वन थिंग मोर, there is no word exist in the market called loss recovery। मार्केट में इस वर्ड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि मार्केट आपको लॉस रिकवर करके देगा। ठीक है, तो कुछ लोग तो शेयर मार्केट में रहते ही इसलिए हैं कि उनको पुराना लॉस रिकवर करना होता है, तो ये अपने माइंड से पहले निकालना पड़ेगा। गॉट इट? So this is all about the session. Let me close the recording and then we'll ask some